my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. I, Shama Parveen, your EVS tutor, welcome you in my today's session. In our today's session, my dear student, we are going to start the chapter number 4. Okay, and the name of this chapter is Human Body. Means in this chapter, we are going to study about our body. Okay, this chapter is fully dedicated to our body. Okay, in this chapter, we are going to see. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to see composition of body, cells, tissues and organs. Okay, it means in this chapter we are going to see about the cells and tissues which is present in our body. Okay, and here we are also going to see different organ systems which is present in our body. Okay, so come with me and start the chapter. Our body is a wonderful machine that performs various activities like eating, running, walking, crying, shouting, writing, singing, swimming, jumping and many more. Actually, our body is a machine. Okay, it is a natural machine and it do a lot of things like we eat, we run, walk, crying, shouting, writing, singing, swimming, etc. and etc. All these works are exclusively performed by our body. Okay, the outer appearance differ from person to person, but the basic structure of body is same in all human beings. अच्छा, हमारा जो outer experience है, outer appearance है ना, ये different है. हर इंसान एक दूसरे से अलग है. ठीक है, किसी की हाइट शॉर्ट है तो किसी की हाइट ज्यादा है. ठीक है, कोई फैट है तो कोई थिन है. ठीक है, लेकिन बॉडी का जो बाहर का आउटर अपीयरेंस है वो तो अलग है. ठीक है, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सारे एक है. ठीक है, वो सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक है. जैसे आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो आप लोग अभी छोटे हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स क्या हैं, बड़े हैं, ठीक है, तो उनका अपीयरेंस आपसे बड़ा है. लेकिन हमारा जो इंटरनल पार्ट है, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर का पार्ट है वो सेम है बिल्कुल. ठीक है, बिल्कुल सेम है. बस हमारा आउटर अपीयरेंस इज डिफरेंट बट all human beings have same inner appearance. Okay, so in this chapter we all going to see about inner appearances of our body. Okay, see, our body is made up of cell. This is very important point, my dear student. Remember, our body is made up of cells. Okay, अब ये सेल क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी तो सेल से बनी है. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? सी, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. देखो, हमारी जो ये पूरी बॉडी है ना वो सेल से बनी हुई है. और सेल क्या है? सेल जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन है हमारी बॉडी का. ठीक है, अगर सेल नहीं है देन देयर इज नो ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो सेल का डेफिनेशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज सेल. ओके, let us know about our body and its composition. So further we are going to see about the internal organs of our body. Okay, so first of all in this chapter we are going to see about cell. What is the meaning of cell? Let's see. Our body is made up of small cells. हमारी बॉडी क्या है? बहुत छोटे छोटे सेल से मिलके बनी है. ठीक है, These cells are of different kind. ठीक है, अगर मेरी बॉडी और आपकी बॉडी, हम सब ह्यूमंस की बॉडी छोटे छोटे सेल्स को मिला के बनी है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे सेल हैं और उनके बहुत सारे टाइप्स हैं. ठीक है, Our body is also made up of numerous cell. अच्छा, हमारी जो ये बॉडी है ना कोई सिंगल सेल से नहीं बनी है, ये बहुत सारे सेल्स को मिला के हमारी बॉडी बनी है. मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन. देखो, जो सबसे बेसिक चीज है हमारी बॉडी का वो है सेल. ठीक है, तो ये जो सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं. मींस हमारे बॉडी का एक पार्ट बनाते हैं. ठीक है, देखो, जब ये सारे सेल्स हमारे मिल जाते हैं उनका शेप अलग होता है. देखो, बहुत सारे सेल्स से हमारी बॉडी बनी है. ठीक है, सो ऑल दो सेल्स हैव डिफरेंट इन शेप, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट functions. Okay, so when all these cells are combined together, okay, they form a tissue like structure. ठीक है, वो क्या करते हैं? वो एक टिश्यू बना देते हैं. ठीक है, और जब ये सारे टिश्यूज मिलते हैं तब वो एक बॉडी ऑर्गन बना देते हैं. ठीक है, आप इस पिक्चर से देखो, सेल देख रहे हो? सेल्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आप तुरंत बोलेंगे सेल. ठीक है, बिकॉज सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. ओके,
अब देखो ये सेल आप देख रहे हो सब अलग अलग है, तो जब ये सारे सेल्स कंबाइन होते हैं, एक साथ मिलते हैं, दे फॉर्म अ टिश्यू। टिश्यू ऐसा दिखता है, ठीक है। अब देखो टिश्यू क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमारी बॉडी का क्या है, सेल है, ठीक है। हमारी बॉडी सबसे पहले सेल से बनती है, ठीक है। जब ये सारे सेल एक साथ आते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्म लेते हैं, ठीक है। और जब कई सारे टिश्यू एक साथ मिलते हैं, देन दे टेक द फॉर्म ऑफ ऑर्गन, वो हमारी बॉडी का एक पार्ट बनाते हैं, ऑर्गन, ठीक है। क्या है, ऑर्गन इज मेड अप ऑफ मेनी टिश्यूज, ठीक है। See, first of all, our body is created with the help of cells, okay? And when many cells were having a different shape, having a different size, combined together, they form tissues, okay? And when many tissues combine together, they form any organ of our body, okay? और देखो फिर उसके बाद क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या है माय डियर स्टूडेंट, लेट्स हैव अ लुक। देखो ये ऑर्गन सिस्टम है, इसका क्या मतलब है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म फ्रॉम एन ऑर्गन, एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब आप देखो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ठीक है। तो ये ऑर्गन ना हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड हैं, तो वो जिस जिस पार्ट में लोकेटेड हैं ये वहां का ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। आप जानते हो हार्ट इज लोकेटेड इन आवर चेस्ट एरिया, ठीक है। तो हमारा जो चेस्ट एरिया है वहां का सिस्टम अलग होता है। किडनी कहाँ पर है, किडनी हमारे लोअर पोर्शन में है, तो वो हमारा क्या काम करता है, वो हमारा एक अलग ऑर्गन के फॉर्म में हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो भी हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तब ये सारे देखो ऑर्गन सिस्टम बन गए और ये सब मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जिसका नाम होता है ऑर्गेनिज्म। देख रहे हो ऑर्गेनिज्म, फिर लास्ट में कंप्लीट पैकेज हमारे सामने आता है ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या है, मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, कई सारे सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के वो बनता है, ठीक है। तो इट मे बी आइदर ह्यूमन बीइंग और इट मे बी animals also, ठीक है। So this process, remember this process, this is the whole formation of our human body or animal's body, okay. So our body means living body is made up of cell. When many cells having different size, shape combined together, they form tissue, okay. And when many tissues combine, they form organs, okay. And organs is located in a specific part of our body parts, means in our body. That organ occupy that area known as our organ system, and those organ system means different types of organ system combinedly form a whole human body, okay. Now my dear student, remember this process: cell, tissue, organ system, and finally a living organism, okay. So first of all we are going to discuss about organs क्या हैं, चलो देखते हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आ जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गन, टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, ठीक है। दिस ऑर्गन परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी, और हर ऑर्गन का एक अलग अलग काम होता है, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उनकी लोकेशन होती है एंड दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, आवर ईयर हेल्प अस टू हियर, हमें सुनाई किस ऑर्गन से देता है, हमारे ईयर से, ठीक है। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल एंड आवर आईज हेल्प अस टू सी, ठीक है। नोज क्या करते हैं, हमको स्मेल लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और हमारी आईज हमें देखने में हेल्प करती हैं। तो ये क्या है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है। A group of organs that work together to perform a particular task is called as organ system. तो जब यही organs एक particular task perform करते हैं उनको हम organ system कहते हैं, ठीक है। देखो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जब वही सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक साथ आ जाते हैं कोई एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तब हम उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल क्या है, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस हेल्प अस टू ईट एंड डाइजेस्ट आवर फूड, ओके।
mouth, food pipe, stomach, intestine, and lastly anus. It all help us to eat and digest our food. Okay, therefore they form digestive system. तो ये क्या होगा, ये digestive organ system होगा हमारे, ठीक है. Human body is made up of several organs like the skeleton system, muscular system, circulatory system, respiratory system, digestive system, excretory system, nervous system, and reproductive system. Okay, so my dear students, in our whole body form you can see different type of organs are present. Okay, so the first, ये आप देख रहे हो skeleton, ठीक है, skeleton आप देख रहे हो, this is a picture of a skeleton. It means the structural structure of our bones. ये इतनी सारी हमारे बॉडी में bones present है, ठीक है. So our head, जो ये हमारा हेड है ना, इसमें एक हड्डी प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं, उस बोन को कहते हैं हम स्कल, ठीक है. ये हमारा स्कल का पार्ट है, ठीक है. सो दिस इज आवर रिब. ओके, सो दिस पोर्शन कंटेन्स अ बोन कॉल्ड एज रिब्स, ठीक है. बैक बोन्स, ये हमारा एक नर्व यहाँ पे पीछे बैकबोन होता है, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड हमारा, ठीक है, वो हमारा बैकबोन है. सो हियर यू कैन सी द होल बोन्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी. ओके, और ये क्या, ये स्केलेटन सिस्टम है. तो हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गेनल सिस्टम्स हैं, वो सब देख लो. हमारे स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस दिस सिस्टम्स इन डिटेल. बट देयर इज सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. आवर स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन. अच्छा, मैंने तो इतना अभी बताया, बट हमारी जो अपीयरेंस है वो किससे दिखती है, हमारे स्किन से दिखती है. ये जो हमारा बॉडी का अपर पार्ट है, ये हमारी स्किन है. स्किन क्या है, स्किन किस पार्ट में आता है, स्किन भी हमारा एक ऑर्गन है, और स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, ठीक है. सो स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन एंड स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी. Okay, so first of all we are going to discuss about our skeleton system. Okay, so the first system which we are going to discuss is our skeleton system. See, आपने यहाँ पे देखा है हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है, बोन से, ठीक है. यानी हमारी बॉडी पूरी की पूरी बोन से बनी हुई है. द स्केलेटन सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, ठीक है. और इसी स्केलेटन सिस्टम की वजह से हमारा जो हेड है वो हेड की जगह पे, हमारे हैंड्स की जगह पे है, ठीक है. यही स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को एक शेप और सपोर्ट देता है, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, और स्केलेटन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ बोन्स होते हैं, बोन्स के अलावा कुछ नहीं होते, ठीक है. द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट्स. जॉइंट्स हेल्प इन द मूवमेंट, ठीक है. अच्छा, इस पूरे स्केलेटन में ये क्यों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, क्यों स्कल यहीं पे है, क्यों रिब यहीं पे, और क्यों बैकबोन यहीं पे है, ये क्यों नहीं डिसबैलेंस होते हैं. इसलिए डिसबैलेंस नहीं होता क्योंकि इनके बीच में जॉइंट्स हैं, ठीक है. मीन्स ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. अब देखो, ये जो स्कल है ये इसके थ्रू जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ये रिब से जुड़ा हुआ है, ठीक है. और ये पूरा का पूरा रिब आकर फिर ये देखो इस तरीके का शेप लेके इधर से गए हैं ना, ये देखो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है. तो जो ये जुड़े हुए, क्यों जुड़े हैं, जॉइंट से जुड़े हुए हैं, ये एक पार्ट से जुड़े हुए हैं जिनको हम जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है. तो और ये जॉइंट से क्या करते हैं, मूवमेंट. अभी मैं अपने हाथों का मूवमेंट कर रही हूँ स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए, ये मैं किससे कर रही हूँ, ये मैं अपने जॉइंट्स के हेल्प से कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरा हैंड है ना वो जॉइंट से ही जुड़ा हुआ है. हियर इज ऑल्सो प्रेजेंट अ जॉइंट, ठीक है. तो ये जो जॉइंट्स है ना हमारे, हम इन्हीं के हेल्प से मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी का, ठीक है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. See, skeleton system give a protection to our internal organ which is present in our body. The skull protect our brain and the ribs protect our heart and lungs. अच्छा, स्कल क्या करता है, हमारा ब्रेन यहाँ पे है, ठीक है. हमारा ब्रेन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है. तो उस ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन देता है, स्कल देता है. ब्रेन कहाँ पर है, देखो ब्रेन यहीं पे होता है. तो ब्रेन की प्रोटेक्शन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. रिब्स क्या करते हैं, हमारे हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करते हैं. ये देखो आप, ये जो रिब की हड्डियां होती हैं, यहीं पे तो हमारा हार्ट है और यहीं पे हमारे लंग्स है, ठीक है. तो हमारे लंग्स को कौन प्रोटेक्शन देता है, रिब्स देते हैं, ठीक है. अच्छा, हमारी बॉडी में कितने बोन्स हैं, हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स हैं, ठीक है. ये एडल्ट ह्यूमन बॉडी में है. I'm talking about adult human body, not a baby. Okay, so in a adult human body there are 206 bones. अच्छा, आप मुझे बता सकते हो सबसे छोटा कौन सा बोन होता है, हमारी कान की हड्डी, ठीक है. We have a bone in our ears. लगता है कि हमारे ईयर्स में हड्डी है,
पर होती हैं, ठीक है, वही सबसे छोटी हड्डी है हमारी बॉडी की, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट बोन विच इज प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी इज आवर ईयर बोन, ओके, एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज आवर स्किन. Remember these 2 points, okay? So this is all about our skeleton system. Now let's see the muscular system. अब ये मस्कुलर सिस्टम क्या है, ये देखो, ये तो पूरा का पूरा हमारा स्केलेटन सिस्टम हड्डी है. मस्कुलर का नाम से ही पता चल रहा है मसल्स, ठीक है. द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स. मस्कुलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ मसल्स होते हैं, ठीक है. दिस हेल्प अस टू मूव द लिम्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. ये मस्कुलर सिस्टम ही हमारी हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के मूवमेंट में. अगर मैं अभी अपने हैंड को मूव कर पा रही हूँ तो स्केलेटन एज वेल एज अपने मसल्स की हेल्प से भी मैं कर रही हूँ इसको, ठीक है. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म द मसल सिस्टम, ठीक है. तो स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों एक साथ काम करते हैं. मीन्स bones and muscles work together, okay, to give us a shape and size and to give us energy to do our work, okay. For this reason muscles are connected to bones. इसीलिए हमारे muscles क्या होते हैं, हमारे bones से connected होते हैं, ठीक है. In order to make a body, in order to मूव अ बॉडी पार्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, टाइटन अप एंड रिलैक्स, ठीक है. हम जब भी अपने बॉडी मूवमेंट करते हैं तो जो हमारे मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, ठीक है. अभी देखो जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, इट मीन्स मेरे जो हाथ के मेरी मसल्स है वो टाइट हो चुकी हैं, ठीक है, फिर वो रिलैक्स होती है, तभी तो मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ, ठीक है. सम मसल्स मूव देयर ओन. बहुत से मसल्स ऐसे होते हैं जो खुद से मूव करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है. देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, ठीक है. बोन्स कितने हैं हमारे बॉडी में, 206, ठीक है, और मसल्स कितने हैं, 600 मसल्स हैं हमारी बॉडी में. सो रिमेंबर दिस डाटा, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर मस्कुलर सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का, ठीक है. यहाँ पे कौन से बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. वी हैव आवर हार्ट, आवर ब्लड एंड आवर ब्लड वेसल्स. Okay, so this is the most important part of any human being because it consists our heart and our blood vessels which carry our blood throughout our human body. The heart, blood and blood vessels work together to control the flow of blood in whole body. अच्छा, blood कहाँ से हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हार्ट से होता है, ठीक है. इसीलिए इसको चैम्बर भी कहा जाता है. हार्ट इज ऑल्सो नोन एज द चैम्बर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. हार्ट क्या करता है, हार्ट ही तो ब्लड का पंपिंग करता है, उसको प्यूरिफाई करता है और उसको सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन. तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अ सर्कुलेशन सिस्टम, ओके. द हार्ट इज अ मेजर ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. And in our circulatory system, which is the most important part, that is our heart, okay. So it means our heart is a major organ in our circulatory system. It pumps blood to all parts of our body, ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम का मास्टर कौन है, हार्ट है हमारा. हार्ट क्यों है, क्योंकि हार्ट ही तो पूरा का पूरा ब्लड को पंप करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और वहीं से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है. ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्स व्हिच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. अच्छा, ये देखो सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हो, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देख रहे हो बहुत सारी हमारी नर्व्स होती हैं, ठीक है. ये क्या, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर हेड टू टो, ठीक है. ये पूरे के पूरे जो ब्लड वेसल्स है ना, इनका नाम ब्लड वेसल्स है, ठीक है. ये देख रहे हो, दिस आर कॉल्ड एज द ब्लड वेसल्स. इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जब पंपिंग होती है ब्लड की हमारे हार्ट में तो उस पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी ब्लड वेसल्स की होती है, हमारे पूरे बॉडी में इक्वली सर्कुलेट करने की, ठीक है. वेसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है. रिमेंबर दिस 2 टर्म्स, आर्टरीज और वेन्स. और ये क्या होता है, आर्टरी और वेन क्या होता है. देखो, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, आर्टरी और वेन, ओके. लेट मी क्लियर यू दिस थिंग इन डिटेल. सी, this is the whole our circulatory system. In our circulatory system we have 3 parts, heart, blood and blood vessels, ठीक है. ये क्या है, ये हमारा हार्ट है, यहीं पे हमारा ब्लड का पूरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है. अब हार्ट ने तो क्या किया, ब्लड प्यूरिफाई कर दिया. नाउ हार्ट अब ब्लड कैसे भेजेगा पूरे बॉडी पार्ट्स में, बिकॉज हार्ट कांट मूव, ठीक है. तो ये क्या करेगा, ये ब्लड वेसल से पूरे के पूरे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में करता है. लेकिन
ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, दिस ब्लड वेसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरी क्या करता है, आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो प्योर ब्लड को हमारे हार्ट से लेकर हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन है तभी तो प्योर है, ठीक है। लेकिन वेन्स क्या होता है, वेन्स वो ब्लड वेसल है जो वापस उसी खून को हार्ट में पहुंचा देता है, लेकिन वो पुअर ऑक्सीजन कंटेंट होता है उसमें, ठीक है। देखो आर्टरी ने क्या किया, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, आर्टरी गुड ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। वेन्स क्या करता है, वो पूरे ब्लड को वापस दोबारा लेके जाता है हार्ट के पास प्यूरिफाई होने के लिए। प्यूरिफाई होगा तभी तो वो वापस आएगा। तो देखो इसी तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज नोन एज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां से हम सांस लेते हैं, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सी द सिस्टम दैट डील्स विद ब्रीदिंग इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिंपल सा मतलब है, हम सांस लेते हैं जिन ऑर्गन से, उन्हें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। वी ब्रीद इन एयर थ्रू द नोज। हम सांस कहां से लेते हैं, अपनी नोज से। द विंड पाइप जॉइंस द नोज एंड द लंग्स। अच्छा, हमने सांस लिया, सांस तो ले लिया, पर वो बॉडी में कैसे पहुंचा, एक विंड पाइप प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, ठीक है। वो विंड पाइप क्या करती है, हमारे नोज को लंग्स से जोड़ती है। हम सांस यहां से लेते हैं और हमारे लंग्स में एयर का प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है। तो वो जो हमारा विंड पाइप है वो कनेक्टेड होता है हमारे लंग्स से। हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने यहां से सांस लिया और यहाँ पे देखो एक ये ट्यूब है, ठीक है। ये ट्यूब देखो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है हमारे दोनों लंग्स से, ठीक है। तो ये ट्यूब क्या करता है, ये ट्यूब हमने नोज से सांस लिया, इसी ट्यूब का नाम है विंड पाइप। विंड पाइप के थ्रू एयर हमारे दोनों लंग्स में पहुंचता है, ठीक है। विंड पाइप टेक एयर टू द लंग्स, ठीक है। लंग्स आर डेलिकेट ऑर्गन्स एंड ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, हार्ट एंड लंग आर आवर मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन्स, ठीक है। सो ऑलवेज take care your heart and lungs properly. The air we breathe in has oxygen. अच्छा, हमने जो सांस लिया उसमें तो ऑक्सीजन है, ठीक है। The blood present in the lungs also absorb this oxygen. So जो सांस हमने लिया और वो जो सांस हमारे विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचा, तो वो लंग्स में क्या पहुंचा, हमारा ऑक्सीजन पहुंचा है, ठीक है। The blood present in the lungs absorb this oxygen. लंग्स में भी तो ब्लड प्रेजेंट है, तो जो ब्लड वहां पे प्रेजेंट है उसने ऑक्सीजन को क्या किया, सोक कर लिया। Our body uses oxygen and produces carbon dioxide. Okay, so after soaking that oxygen, our body automatically convert that oxygen into another gas named as CO2. It means carbon dioxide. The blood carries the unwanted carbon dioxide to the lungs. ठीक है, ब्लड क्या करता है, अनवांटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। So this is known as our respiratory system. Okay, now my dear students, here is a question for you. नेम द ऑर्गन सिस्टम इन विच आवर हार्ट बिलोंग्स। आपको वो ऑर्गन सिस्टम बताना है जहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है। वो कौन सा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट प्रेजेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है। डाइजेस्टिव का मतलब ही पता चल रहा है, खाना खाते हैं और खाना पचाते हैं, ठीक है, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गन्स नॉट ऑर्गन सिस्टम, ओके। कौन कौन से ऑर्गन्स है, माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्टली आवर एनस, ओके। वी ईट फूड विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ। हम खाना कहाँ से खाते हैं, हमारे माउथ की हेल्प से, ठीक है। द फूड मिक्सेस विद द सलाइवा एंड बिकम्स सॉफ्ट। अच्छा, हमारे माउथ में ना एक बहुत ही लिक्विडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वो सलाइवा होता है। उस सलाइवा के ही हेल्प से हमारी जो खाना हम खाते हैं वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट देन मूव्स डाउन थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक, फ्रॉम हेयर इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, सलाइवा क्यों प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, क्योंकि हम खाना जो खाते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए। अगर वो सॉफ्ट नहीं होगा देन वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट आवर फूड, ठीक है। तो क्या होता है, खाना हमारे सलाइवा से मिक्स होता है, उसके बाद वो सॉफ्ट होके फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में पहुंचता है, ठीक है। इट रिचेस इन आवर स्टमक एंड देन फ्रॉम आवर स्टमक इट गोज टू द
small intestine part. Okay, then it is transported to the other parts of the body. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो बाकी के बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है. ठीक है, द डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा, डाइजेशन जो प्रोसेस है ना वो पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. ठीक है, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू टू द एनस. ठीक है, अच्छा, और जो खाना हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उसी को हम जब फ्रेश होते हैं तो हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल के तौर पे निकालते हैं बाहर. ठीक है, सो ये देखो, ये क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पिक्चर में. ठीक है, हमने क्या किया, हमने माउथ से खाना खाए. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, द फर्स्ट ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज आवर माउथ. ओके, सो थ्रू आवर माउथ वी टेक आवर food. Okay, and that mouth and that food is mixed with saliva. Okay, तो वो saliva से वो mix हो गया. उसके बाद क्या होता है, माउथ से तो हमने खाना खा लिया. ओके, अब क्या होता है, वो फूड पाइप के थ्रू वो नीचे जाता है. सो दिस इज फूड पाइप. ठीक है, इसी फूड पाइप के थ्रू खाना क्या होता है, नीचे गया. उसके बाद वो हमारे स्टमक में पहुंचता है. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्टमक. ठीक है, हमारे पेट में पहुंचा. फूड इज चर्न्ड एंड मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस. हमारे स्टमक में बहुत टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मीन्स लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट है वो, ताकि वो खाने को डाइजेस्ट कर सके. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्टमक के बाद डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड फूड इज एब्सॉर्ब. ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी आती है. स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना क्या होता है, पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, और डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड है हमारी बॉडी पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद देन इट कम्स द टर्न ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन. हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस हेयर. ठीक है, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना डाइजेस्ट होता है जो हमने खाया है. लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमने पानी पिया है वो सब डाइजेस्ट होता है. पानी ऐसा नहीं कि पी लिया तो बात खत्म, उसे भी डाइजेस्ट होना होता है हमारी बॉडी में. ठीक है, एंड देन आफ्टर कम्स द टर्न ऑफ एनस. द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस. ठीक है, बहुत सा खाना हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होता है, इस एनस हमारा ऑर्गन है, इसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, नाउ आफ्टर डाइजेस्टिव सिस्टम we are going to talk about excretory system. अब इसका क्या मतलब है, excretion is the process of removal of all waste from the body. अच्छा, मैंने इस पार्ट में आपको बताया कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमने उसको थ्रू आउट कर दिया, लेकिन उसके बीच में भी तो एक प्रोसेस होता है, खाना डाइजेस्ट हुआ और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ. ठीक है, वो कौन से ऑर्गन में आता है, मीन्स वो कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है हमारा, सॉरी नॉट डाइजेस्टिव सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट वो कौन सा सिस्टम में हमारा आता है. उसके बीच में जो प्रोसेस फॉलो होता है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में फॉलो होता है. ठीक है, देखो, आप एनएस के थ्रू जब हम अपना बाहर निकालते हैं सारा वेस्ट मटेरियल, जब हम फ्रेश होते हैं. ठीक है, लेकिन वो पार्ट्स भी तो कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब होते होंगे, वो कहीं ना कहीं तो वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट होते होंगे. वो कहाँ होते हैं, दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये इसमें होते हैं. ठीक है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑल वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन क्या प्रोसेस है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस थ्रू विच आवर बॉडी थ्रो आउट ऑल द वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी. अच्छा, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, लेट्स हैव अ लुक. आवर लंग्स, आवर किडनी, आवर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्किन आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सो रिमेंबर, lung, kidney, large intestine and our skin, they all are the part of excretory system. Urine, sweat and carbon dioxide are our body waste. तो हमारी बॉडी के कौन कौन से वेस्ट होते हैं, हम यूरिन पास करते हैं, वो हमारा बॉडी वेस्ट होता है. स्वेट है, हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग हमें कहाँ पे होती है, हमारे स्किन पे होती है. स्वेटिंग हमें यहाँ होती है, तो ये तो हमारा स्किन है ना. ठीक है, तो स्वेटिंग स्किन के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड आर आवर बॉडी waste. ठीक है, kidney are the main excretory organ. Okay, so the main part of our excretory system is our kidney. Okay, kidney helps to throw out urine. हम urine pass out करते हैं, वो कहाँ से बनता है, वो
किस ऑर्गन में? वो हमारा किडनी में बनता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट, वैसे ही हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किडनी। ठीक है। Our skin helps to eliminate sweat and lungs give out carbon dioxide. ठीक है। सो स्वेटिंग हमारी बॉडी से किस ऑर्गन के थ्रू बाहर निकलती है? विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। ओके। एंड लंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और लंग्स क्या करते हैं हमारे? वो जो ऑक्सीजन हमने लिया, इनहेल किया, और एक्सहेल जो हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, वो हमारा ऑक्सीजन हमारा लंग ऑर्गन देता है। ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे यूरिन क्या होता है? ठीक है, प्यूरिफिकेशन होता है हमारी बॉडी का। ठीक है। तो यूरिन पास आउट होता है किडनी से। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखो, सो दिस इज, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसको यूरेटर कहा जाता है, और ये ब्लडर है और यूरेथ्रा है। ठीक है। यही ब्लडर होता है। यहीं पे जब हमें टॉयलेट लगती है ना, हमें फील होता है कि हमें टॉयलेट लगी है, नाउ वी नीड टू यूज वॉशरूम फॉर पास आउट आवर यूरिन। वो यूरिन कहाँ स्टोर होता है? किडनी से पास आउट होकर वो यहीं पे स्टोर होता है। ठीक है। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहीं पे आपका यूरिन स्टोर होता है। ठीक है। और यहीं से हम लोग उसको पास आउट करते हैं। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके। नाउ सी, here are some fact is also available. यूरिन एंड स्वेट हेल्प टू एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, यूरिन हम क्यों पास आउट करते हैं और स्वेटिंग हमें क्यों होती है? जब हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाता है, ठीक है, मीन्स हमारी बॉडी को जितनी नीड है उतना तो वाटर हमारी बॉडी में है, लेकिन ज्यादा अगर हो गया है उसे बाहर निकालोगे, ठीक है, तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। और स्वेटिंग के थ्रू जो हमारी बॉडी से स्वेट होता है उसमें से सॉल्ट हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है वो बाहर निकलता है। ठीक है। नाउ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब हम अपने नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कंट्रोल ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, अभी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये सब पढ़ा। ठीक है। इन सब के अलग अलग पार्ट्स हैं। But you know what, my dear student, our human body is a machine and you all know machine needs to be controlled. मशीन का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे बॉडी का वो कौन सा सिस्टम है जो इन सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है? डेट इज आवर नर्वस सिस्टम। ओके। सो नर्वस सिस्टम ये सारे के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। इट कंट्रोल एक्शंस लाइक, अच्छा ये कैसे कंट्रोल करता है? वॉकिंग, सीइंग, लिसनिंग एक्सेट्रा। हम वॉक करते हैं, ठीक है, तो हम अपना एक पैर आगे रखते हैं, एक पैर पीछे रखते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये हमारे नर्वस सिस्टम ही हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है। तभी तो हमारे ब्रेन को पता है कि एक पैर अगर आगे जाएगा, इफ यू वांट टू वॉक, तब हमें क्या करना है? एक पैर आगे रखना है, एक पैर पीछे रखना है। और अगर दोनों पैर ऐसे, इट मींस वी आर स्टैंडिंग। ठीक है। तो ये कमांड हमें कहाँ से मिलता है? हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है। The brain, nerves and the spinal cords together form our nervous system. Is connected to all the parts of the body. So nervous system में हमारे कौन कौन से parts आते हैं? हमारा brain आता है, हमारा nerve आता है, हमारा spinal cord आता है। ठीक है। brain, nerves और spinal cord, ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे nervous system का part हैं। ठीक है। It allow us to think, फील, ये क्या करता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब जो हम सोचते हैं ना, अपने ब्रेन से सोचते हैं, फील कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं और रेस्पॉन्ड कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस पे। ठीक है। द ब्रेन इज लिंक्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हमारा जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स से जुड़ा हुआ है। आवर ब्रेन इज कनेक्टेड विद ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ द नर्व्स। ठीक है। ये नर्व्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है। The brain also sends the instructions to each body part. Okay, so all the instructions which our body follow is given by our brain. Okay, so here you can see this is a picture of our nervous system. Okay, the master of nervous system, brain, and this is a long structure of bone known as a spinal cord, and all our body is connected with the nerves. Okay, now the last system is our reproductive system. Okay, reproductive system. Now what is the meaning of the reproductive system? See, the reproductive system helps to produce young ones. इसी के जरिए हमारे जो बेबीज पैदा होते हैं वो इसी सिस्टम के थ्रू पैदा होते हैं। ठीक है। दिस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, दिस सिस्टम इज 100% responsible to continue new life on this planet Earth.
इन मैन दिस सिस्टम इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल में अगर मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहता है और फीमेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है. द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिस्टम एंड इट वर्क्स आर डिफर फ्रॉम मैन एंड वुमन. ओके, सो मेल का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल का अलग होता है, ठीक है. बट द बेसिक फंक्शन ऑफ द सिस्टम टू टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. बट दोनों का एक ही फंक्शन होता है, टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, see now here some fact is also available. The spinal cord and nerves help the brain to do its job. Okay, so spinal cord and nerves, okay, spinal cord and nerves act as the helper of brain to do its job. So this is all about in this chapter. Okay, so come with me and let's a quick recap of this chapter. See, our body is made up of small cells. Okay, we breathe in air through our nose. The muscular system consists of the muscles. Different systems in the body carry out our different functions. Reproductive system help in giving birth to the young ones. Okay, so my dear student, this is all about in this chapter. I hope you get a very good understanding of this chapter. Now go through this chapter and complete all the exercise based on this chapter. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.